اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصر رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ ظہور امام زمانہ اور ہونا ہے، لازمی ہونا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طرح قیامت کا آنا یقینی ہے، اسی طرح امام زمانہ کا ظہور یقینی ہے۔ اس ضمن میں ظہور کے معاملات میں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا قام قائمنا اذهب اللہ عز وجل۔ پھر فرمایا عن شیعتنا الآحہ وجعل قلوبہم۔ امام فرماتے ہیں دار الانوار جلد نمبر 52 اور صفحہ نمبر 317 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا قیام کرے گا، قائم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قیام کرے گا، تو خدا بند متعال آفتوں کو شیعوں کے اوپر سے ہٹا دے گا۔ جو آفتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، ساری آفتیں چھٹ جائیں گی، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں جب ہمارا قائم جو ہے وہ قیام کرے گا۔ اور پھر فرمایا ان دلوں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح استقامت و استقام کی طاقت دے گا۔ یعنی وہ شیعہ، ہر وہ بندہ شیعہ کہلائے گا اس ٹائم کہ جو امام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، وہ شیعہ امام زمانہ ہے، اور وہ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اور پھر وہ مضبوط ہو جائیں گے، مستحکم ہو جائیں گے، اور ان کو استقامت کی طاقت دی جائے گی۔ اور جو امام زمانہ کا لشکر ہوگا نا، امام زین العابدین فرماتے ایک بندے کے اندر خدا اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ اس کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے لشکر میں تو کم لوگ ہوں گے، زیادہ اگر ادھر ہو گئے تو پھر یہ کیسے قیام ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ تو اللہ چونکہ آخری زمانہ ہوگا، اس کے بعد حکومت قائم ہوگی، اور پھر امام زمانہ کا وجود نہیں رہے گا کئی عرصے کے بعد، تو پھر قیامت نے آنا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی امام نے آنا نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ نے اہتمام فرمایا ہے اتنا کہ اگر کم لوگ بھی ہیں لشکر امام میں تو ہوگا کیا؟ ایک ایک بندے کے پاس 40 مردوں کی طاقت موجود ہوگی۔ یعنی جہاں 40 مرد مل کر کام کرتے ہیں اس کام کو، وہاں امام زمانہ کا ماننے والا ایک ہوگا تو وہ 40 کام وہ کر دے گا۔ اتنا مضبوط ترین لشکر ہوگا امام زمانہ کا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دور حاضر کے اندر بھی آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں طاغوت زیادہ ہے، طاغوت زیادہ ہے، استحصال زیادہ ہے، جابر اور ظالم حکمرانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج آپ سر بلند ہیں، سرفراز ہیں، اس وجہ سے کہ آج بھی آپ کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، آپ کا رعب ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کے اندر وہ روحانی قوت آج بھی موجود ہے کہ اس دنیا میں آپ لاکھوں کروڑوں
तागूत के अंदर रहते हुए, यानी तागूत के दौर में रहते हुए भी अगर आप जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं और अपने नजरियात व अकायद और अपनी पूरी ताकत के साथ, वजूद के साथ अगर मौजूद है, तो फिर ये ताकत आपको इमाम ज़माना ने बख्शी है, और इमाम ज़माना को अल्लाह ने बख्शी है, अल्लाह ने हुज्जत करार दिया है। और इसी तरीके से आप जब ज़हूर फरमाएंगे तो एक एक बंदे के पास 40-40 अफराद की ताकत होगी, और वो मुखालिफ लश्कर को मिलिया मेट कर देंगे, निस्बो नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे हर उस तागूत को कि जो इलाही निजाम के अंदर रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेगा, जो उसमें दखल अंदाजी देगा, और खालिस इलाही निजाम कायम हो जाएगा, और खालिसतन अल्लाह का निजाम। और जिस तरह सजा और जजा का सिलसिला खुदा के पास है और कुरान में और हदीस में मौजूद है, उसी तरीके से इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर कायम करेंगे। आज मुल्क अगर कोई हासिल किया जाता है तो इस्लाम के नाम पे हासिल करके फिर उसके अंदर तागूती निजाम, इस्तिसाली निजाम, जागीरदाराना निजाम, सरमायादाराना निजाम, और एक है मुल्लाइज्म निजाम, और पता नहीं कौन कौन से इज्म, कैसे कैसे इज्म इजाद कर लिए गए हैं। ये सारे के सारे इज्म भस्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और एक ही इज्म रहेगा, इज्म इलाही, इज्म इमाम ज़माना, वही बाकी रहने वाला है। बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और इनको बर्बाद होना है। जा अल हक को वजह कल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल को तो मिटना ही था। ये आयत इस बात की गवाह है, और उसका मिस्दाक इमाम ज़माना है कि जब ये हक आएगा तो फिर बातिल मिट जाएंगे, और बातिल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, निस्बो नाबूद हो जाएंगे। हक का बोल बाला होगा, अदलो इंसाफ होगा, है जी, बेहतरीन तरीके से लोगों की जिंदगियां बसर होंगी, और फिर कई साल तक ये सिलसिला जारी और सारी, और फिर हुज्जत खुदा को भी इस दुनिया से भेज दिया जाएगा। और यकीनन चूंकि ये सारे शहादत की मौत गए हैं, कोई अपनी तभी मौत नहीं गया, इसी तरीके से इमाम ज़माना भी इस दुनिया से चले जाएंगे। जब इमाम ज़माना चले गए तो 12वां आका है, आखिरी जानशीन पैगंबर है, हुज्जत खुदा है, और जब आखिरी हुज्जत को भी लोग भेज देंगे तो फिर अब खुदा कहेगा अब मैं कोई हुज्जत भेजने वाला नहीं हूँ, मैंने अपनी हुज्जतों को तमाम कर दिया है। उसके बाद क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी, नए पहाड़ रूह की माने धुने हुए जाएंगे, और ऐसा माहौल होगा कि अल्लाह तश की आवाज़ें होंगी, परेशान होंगे, लेकिन वो लोग परेशान नहीं होंगे कि जो इमाम की छतरी में मौजूद होंगे, जो इमाम के साथ जिन्होंने दिया होगा, हैं उनके लिए क़यामत नहीं होगी। उसी तरीके से जिस तरह तूफान आया था, एक बुढ़िया बच गई थी, उसे नहीं पता चला कि तूफान आया है, उसे नहीं पता चला कि अजाब आया है, वो बुढ़िया बच गई। क्यों बची? कि वो रोज़ाना नूह से कहती थी मैंने भी साथ जाना है, लेकिन नूह चले गए, वो रह गई, तूफान में सारे मर गए, पानी में डूब गए, वो बूढ़ी औरत जिंदा रही, उसे पता ही नहीं चला कि कब है अजाब आया और कब गया। इसी तरीके से जो इमाम ज़माना के साथ मुखलिस हुए, जो इमाम ज़माना की फ़ौज में हुए, जो इमाम ज़माना का साथ देने वाले हुए, तो होगा क्या कि क़यामत तो आएगी, लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि क़यामत कब आई और कब चली गई। पता तो उन लोगों को चलेगा जो तागूत हैं, पता तो उन जालिमों को चलेगा कि जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं और अल्लाह के अजाब से नहीं डर रहे, तो अल्लाह उन पे अजाब भेज कर रहेगा। कुछ तो इस दुनिया में भी अभी देखेंगे, और फिर इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो फिर वो
उस वक्त भी उनके साथ हिसाब किताब होगा, और फिर कयामत वाले दिन भी हिसाब किताब होगा, और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। आज बहुत बड़े बड़े बने फिरते हैं तो तुम्हारे सामने और इस्तेसाल करते हैं वो गरीबों का, मिस्कीनों का, कमज़ोरों का, लाचारों का, बेबसों का। तो उस वक्त उनका कोई बस नहीं, उस वक्त बेचारे वो खुद इतने बेबस हो चुके होंगे, इतने मजबूर और लाचार हो चुके होंगे कि उनकी कोई सुनी नहीं जाएगी। और उस वक्त हर कोई शख्स जो है वो उनसे अपना हक मांग रहा होगा और माफ नहीं कर रहा होगा, उसके नतीजे में वो हमेशा के लिए वासिल जहन्नम हो जाएंगे और उन पे अजाब होता रहेगा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के अजाब से महफूज रहो, अल्लाह की नाफरमानी न करो, खुदा के हुज्जतों का एहतराम करो, खुदा की हुज्जतों की बातों को मानो और उन्होंने जो तरीका बताया उस पर चलने की कोशिश करो ताकि तुम बच सको। हाँ, जहन्नम की आग बड़ी सख्त है अजीजों, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।